So electrophilic substitution reactions in case of haloarenes. Those reactions in which electrophile means electron loving species अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग. आपको मालूम बेंजीन रिंग के अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ड्यू टू रेजोनेंस. एक्चुअली द हैलोजन एटम shows plus R effect and it shifts electron density inside the benzene ring. इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने क्लास 11 में काफ़ी बनाए हैं जिसमें जो हाइड्रोजन एटम यहाँ दिख रहा है it shifts its electron density inside the benzene ring and the electron density will be higher at ortho and para positions in case of chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene. Right? So we can say the halogen attached to the benzene ring is ortho-para directing in nature. It means if any electrophile approaches to this haloarene, that electrophile will be shifted to ortho and para positions. And some of the reactions are, first is halogenation. This is also called Friedel-Crafts halogenation. All those reactions which are carried out in presence of Lewis acids like AlCl3, like FeCl3, these reactions are referred as Friedel-Crafts halogenation reaction. Friedel-Crafts halogenation reaction भी इसको हम बोल सकते हैं, right? So what will happen? This FeCl3 act as a catalyst which act as a Lewis acid, and this FeCl3 will help in the formation of electrophile. This FeCl3 cause heterolytic fission in case of Cl2. That means the shared electron pair will go with one of the halogen atom and जिससे दूर जाएगा उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव. It is Lewis acid, that is electron deficient, and this Cl negative is now electron rich, and this Cl negative will combine with this Lewis acid to form FeCl4 negative and the electrophile Cl positive. This is called chlorine carbocation, right? And now this electrophile Cl positive will be directed once at ortho position and once at para position. Always the para position isomer will be the higher in concentration and ortho will be lesser in concentration due to the steric repulsion. ये Cl और ये Cl आपस में एक दूसरे के इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ऑर्थो पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रोफाइल है वो थोड़ा कम कंसंट्रेशन में आता है एंड वी गेट एज अ माइनर प्रोडक्ट. और यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस देखिए काफ़ी कम है. यहाँ पे दोनों एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है उस पर है. सो इट विल फॉर्म एट हायर कंसंट्रेशन. So this is the work of Lewis acid which act as a catalyst and facilitate heterolytic fission in Cl2 molecule. Heterolytic fission में जो bond पर इलेक्ट्रॉन है that goes with one single atom or group of atom, और जिस एटम पे चार्ज ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा that will get negative charge और जिससे दूर जाएगा that will get positive charge and results in the formation of generation of electrophile which will attack on the benzene ring. So this is Friedel-Crafts halogenation reaction. Similarly, this is nitration. In nitration, the attacking species will be nitronium ion, NO2 positive, and this NO2 positive will attack at once at ortho. You will get orthonitrophenol. Sorry, ortho. This is called 1-chloro-2-nitrobenzene, or once it goes at para position to get 1-chloro-4-nitrobenzene. It will be the major and this will be the minor product. Now we go for the sulfonation. Sulfonation is carried out with the help of conc H2SO4 और इसकी जगह आपको फ्यूमिंग जिसमें फ्यूम्स निकल रहे हैं कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा मिल सकता है.
or in place of fuming H2SO4 they can also write oleum, that is H2S2O7. This is highly concentrated sulfuric acid. So इनमें से कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको. And in sulfonation the attacking species will be SO3H. So once SO3H will substitute at ortho position and once at para position. This is 2-chlorobenzene sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड और हेलोजन में जो प्रेफरेंस है वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप को दी जाएगी, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे हम. और जो मेन नाम है कंपाउंड का दैट विल बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, नॉट क्लोरोबेंजीन. सो इट इज 2-chlorobenzene sulfonic acid and it is 4-chlorobenzene sulfonic acid, and this H1O and this H, it will result in the formation of water. What is left? NO2 positive. This is the attacking species, NO2 positive nitronium ion in case of nitration, and HSO4 negative is formed. So main जो electrophile है that is NO2 positive, which will be produced by the reaction of conc HNO3 and conc H2SO4. ये it is called Friedel-Crafts alkylation. It is called Friedel-Crafts alkylation because this alkyl group act as an electrophile and will be substituted, will be directed at ortho and para position. How this electrophile is generated? This is AlCl3, which cause heterolytic fission in case of CH3Cl, by which the shared electron pair will be completely shifted to Cl, and this Cl get negative, and this will result in the generation of CH3 positive electrophile alkyl group. And this is a Lewis acid which combined with the electron rich Cl negative species forming AlCl4 negative. Once this CH3 positive will be directed to ortho position, and once this CH3 positive will be directed to para position. It is called 1-chloro-2-methylbenzene. It is 1-chloro-4-methylbenzene. This is called Friedel-Crafts acylation. This reaction is called Friedel-Crafts acylation, or acetylation can also be written. So this is acetyl group CH3CO. So ये जो CH3CO positive है, it will act as a electrophile. कैसे रिएक्शन होने वाली है? This AlCl3 will cause heterolytic fission in acetyl chloride CH3COCl. ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, and it form AlCl4 negative, and this forms CH3CO positive acetyl carbocation which act as a electrophile. And now this electrophile will be directed to once at ortho position, ये कार्बन है यहाँ पर, and once at para position. So इसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे. जब बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाता है तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन. So it is number 1, it is number 2. This is 2-chloroacetophenone, and this is 4. This is 4-chloroacetophenone. पैरा वाला हमेशा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा. Now we go for very interesting question. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए क्या कह रहे हैं इसमें. ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या है पहले ये समझ लेते हैं. देखिए Cl when attached to the benzene ring, it transfer its electrons inside the benzene ring, जैसे यहाँ पे कर रहा देखिए, due to plus R effect, due to resonance effect.
but this Cl negative also is a minus I effect, और इट शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो ये जो कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ शिफ्ट करना चाहिए? Cl को अपनी तरफ। इनका कहना ही है ये दोनों एक तरह से अपोजिट काम कर रहे हैं। प्लस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के अंदर डिलोकलाइज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से इसको कार्बन और Cl के बीच का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is ortho para directing in इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है ड्यू टू द रेजोनेंस और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा, जिसको आप इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हो, माइनस आई बोल दो, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोल दो। तो देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इफ एनी इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन क्लोरोबेंजीन, तो देखिए क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड will involve in the bond formation with this electrophile। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पाई बॉन्ड जो था ये शिफ्ट हो गया इस कार्बन एटम पर, जिससे इस पे आ गया चार्ज नेगेटिव, और यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे चार्ज कार्बन पे नेगेटिव आ गया ना, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल, सो इट विल अटैक एट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब अगर ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, या इस कार्बन पर वैसे ही चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, Cl और इस कार्बन से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसको और बढ़ा देगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन है, ये इस जो कार्बोकैटायन बना है, पॉजिटिव चार्ज बना है, इसको क्या कर रहा है? डिस्टेबिलाइज कर रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर आप प्लस आर इफेक्ट से देखो जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बार क्या हुआ? प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसको Cl कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो प्लस आर इफेक्ट है वो इस अटैक को स्टेबिलाइज करेगा, फेवर करेगा, जबकि माइनस आई इफेक्ट इसको क्या कर रहा है? डिस्टेबिलाइज करेगा, जो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो बहुत नटशेल में एक बात समझ लीजिए, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ओरिएंटेशन डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा और पैरा पोजीशन पर जाएगा, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो अटैक है इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं माइनस आई इफेक्ट, ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसको डिस्टेबिलाइज कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट इसको क्या कर रहा है? स्टेबिलाइज कर रहा है। तो बड़ी बैलेंस इन्होंने इक्वेशन लिखी है। देखिए, मैं आपको पहले लास्ट लाइन पढ़ के बताता हूँ, फिर बाकी पढ़ के बताऊंगा आपको। देखिए क्या लिखा है, रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। ये की लाइन है। ओरिएंटेशन का मतलब है वेदर द इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इट विल बी डिसाइडेड बाय रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। बट ये जो उसकी अप्रोच है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाने की इलेक्ट्रोफाइल को, वो बहुत स्लो होती है इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इन केस ऑफ हैलोजेंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैलोजेंस की टेंडेंसी माइनस आई इफेक्ट शो करना भी है, दे आर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल के जो अटैक है, जैसा आपने पहले स्टेप में देखा, उसको फैसिलिटेट नहीं करते। तो देखिए कितनी बढ़िया बैलेंस इन्होंने लैंग्वेज लिखी है। थ्रू रेजोनेंस halogen tends to stabilize the carbocation,
रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोकैटायन बना है उसको स्टेबिलाइज करेगा रेजोनेंस, एंड इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वो आपने इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें देख लिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बढ़ जाती है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट and causes net electron withdrawal and thus called net deactivation, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को डीएक्टिवेट करेगा, जैसा आपने पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा था। The resonance effect tends to oppose inductive effect for the attack at ortho and para positions and hence makes the deactivation less for ortho and para position. So last line फिर वही आ गई, reactivity is thus controlled by stronger inductive effect, यानी कि ऑर्थो और पैरा पर जो जा रहा है इलेक्ट्रोफाइल वो स्लो जाएगा। वो किसकी वजह से जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। लेकिन कहाँ जाएगा? दैट इज डिसाइडेड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए सब बच्चे। Like dichloromethane, it is a widely used solvent as a paint remover, or higher level of methylene chloride in air causes dizziness, nausea, tingling, and numbness in the fingers and toes. In human, direct skin contact with methylene chloride causes intense burning, mild redness of the skin, and direct contact may cause can burn the cornea of eyes. नेक्स्ट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफॉर्म है CaCl3। इसमें हमें एक पॉइंट ये पढ़ना है कि इट इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर बोटल्स, बिकॉज क्लोरोफॉर्म अगर को लाइट मिल जाएगी सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड टू अ हाईली पॉइजनस गैस लाइक फॉस्जीन गैस प्लस एसिल। आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा, चोर आते हैं और लाला जी जब सो रहे होते हैं उनकी तकिया के नीचे चाबी रखी होती है, तो क्या करते हैं चोर, एक रुमाल में कपड़े में क्लोरोफॉर्म लेकर के लाला जी की नाक पे रख देते हैं और लाला जी बेहोश हो जाते हैं और चाबी निकाल के चोरी हो जाती है। लेकिन अगर वो चोरों ने बहुत ही पुराने समय की रखी हुई क्लोरोफॉर्म की बोतल ले ली है जिसमें लाइट पहुंच रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो लाला जी से पहले वो चोर बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उस क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन हो गया होगा तो उसके अंदर कौन सी गैस बन गई होगी? फॉस्जीन गैस। तो चोरों को इस बात के लिए भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन मिल गई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो कौन सी गैस मिलेगी आपको? फॉस्जीन गैस मिलेगी, जो हाईली पॉइजनस गैस है। तो इसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए क्या करते हैं, जो फुल बोतल होती है क्लोरोफॉर्म की उसमें 1 या 2 ड्रॉप जो है एल्कोहल का डाल देते हैं। एल्कोहल क्या करता है यहाँ पे? रिटार्ड कर देता है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है, बिकॉज एल्कोहल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म का है उसे होने से रोकेगा, कम करेगा। अगर आपको चेक करना है कि फॉस्जीन गैस बनी है या नहीं बनी है तो आप उसे स्मेल करके तो करोगे नहीं, क्योंकि आप बेहोश हो जाओगे, पॉइजनस गैस है। तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लेकर के उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का, तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव तभी बनेगा जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो जाएगा फॉस्जीन में, तभी तो एसिड बनेगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और इसी की वजह से Cl नेगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे क्लोरोफॉर्म के अंदर। और अगर सिल्वर नाइट्रेट डालते व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो समझ जाना कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो चुका है और फॉस्जीन गैस वहां पर बन चुकी है। बड़ा प्रिकॉशनरी आपको उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहाँ देखते हैं। दिस इज ट्राई आइडोमीथेन, आपने नाम सुना होगा आइडोफॉर्म का। अब मार्केट में आपको आइडोफॉर्म नहीं मिलती, लेकिन आइडोफॉर्म की स्मेल जैसे कंपाउंड आपको मिल जाएंगे आज की तारीख में, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले यूज करने लगे। लोगों ने क्या किया, आयोडेक्स वगैरह को, जो बहुत ही ज्यादा नशेड़ी लोग होते थे वो आयोडेक्स को ब्रेड पर लगा करके खा लेते थे आयोडेक्स को जी। तो इसके मिस यूज को बचाने के लिए आज, और इसकी जो स्मेल है वो कैसी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल है आइडोफॉर्म की। आप देखिए घर में किसी को चोट लगे, आप कहीं बाहर से एंटर करो, किसी ने कोई भी पेन किलर वाला ट्यूब लगाया हुआ जिसमें आइडोफॉर्म है या कोई दूसरे फॉर्मुलेशन हैं, तो आपको उसकी स्मेल से पता चल जाएगा किसी को चोट लगी, किसी ने जो है आज मूव लगाया है।
जो आइडोफॉर्म है इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है। उसकी वजह, क्योंकि आइडोफॉर्म की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, इट कैन लिबरेट आयोडीन। आइडोफॉर्म की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज खुद की नहीं होती, बट आयोडीन कैन रिलीज free iodine, iodoform can release free iodine which has antiseptic properties. आपने नाम भी सुना होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो कि एज ए एंटीसेप्टिक यूज होता है। तो आयोडीन क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है और वो आयोडोफॉर्म उस आयोडीन को आसानी से रिलीज कर सकता है, इसीलिए हम आयोडोफॉर्म को एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। लेकिन आजकल इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल होती है और इसीलिए इसको जगह दूसरे फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशन कंटेनिंग आयोडीन। नाउ नेक्स्ट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो आजकल फायर एक्सटिंग्विशर्स आ रहे हैं उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही हम यूज कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज वाइडली यूज्ड as a cleaning fluid both in industry as a degreasing agent and in the home as a spot remover and as a fire extinguisher। तो ये सब कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस हैं। लेकिन अगर इसको बहुत लंबे समय तक आप एक्सपोजर रहेंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। There are some evidences that exposure to carbon tetrachloride causes liver cancer in humans. The most effects are dizziness, lightheadedness, nausea, and vomiting, which can cause permanent damage to the nerve cells. Exposure to carbon tetrachloride can make the heartbeat irregular or stop. और ये आइस को भी इरिटेट करता है, तो इससे बचना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। Depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays, leading increasing। और देखिए जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, द केमिकल में इरिटेट ये सॉरी व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज इनटू एयर इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट ओजोन लेयर। हालांकि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन के लिए मेनली इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप फ्रियॉन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम कॉमनली फ्रियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन से बना सकते हैं। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं AgF HgF के साथ किसी भी कंपाउंड का, तो उससे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बना सकते हैं। These are usually produced for aerosol, propellant, refrigeration and air conditioning purposes। जो फ्रियॉन का यूज है वो मेनली रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में यूज होता है और ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं। तो जैसे ये लीक होते हैं सीधे अपर एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं और वहाँ जो ओजोन लेयर है वहाँ पर फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म की हेल्प से ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर देते हैं। इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रियॉन इज एबल टू इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन that can upset the natural ozone balance। तो जो सबसे कॉमन फ्रियॉन है दैट इज फ्रियॉन 12 whose formula is CCl2F2 यानी कि डाइफ्लोरोमीथेन। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज DDT, पैरा पैरा डैश, ये देखिए ये पैरा, दिस इज पैरा डैश, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये DDT है आपके सामने। पैरा पैरा को रिपेल करने के काम आते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें इनका यूज बहुत ज्यादा हुआ DDT का। The use of DDT increased enormously on a worldwide basis after World War II, primarily because of its effectiveness against the mosquito that spreads malaria and lice that carry typhus. However, problem related to extensive use of DDT begin to appear in 1940s। लेकिन इसके एक्सेसिव यूज से फिर प्रॉब्लम होने लगी। ये जो DDT है जब वाटर बॉडीज में पहुंचने लगा तो जो वहाँ की मैराइन स्पीशीज थी, फिशेज वगैरह, और उनको खा लिया एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स ने, तो अल्टीमेटली DDT कहाँ चला गया, बॉडी में पहुंच गया। और ये भी हुआ कि जो मॉस्किटोज हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया DDT के अगेंस्ट, और ये DDT जब ह्यूमन बॉडी से पहुंच गया जहाँ भी क्लोरीन की अमाउंट ज्यादा होगी बॉडी के अंदर तो वो कैंसर कॉज कर देती है। तो इसलिए जो DDT का यूज है आज की तारीख में कई सारी कंट्रीज में बैन है।
मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कंट्रीज ऐसी भी जहाँ पे बैन नहीं है, आपको समझदार है कहाँ पे क्या चलता है। तो द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में ये बैन है in 1973, although it is still in use in some other parts of the world। आप समझ गए होंगे मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आप नाम सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूज हो ही रहा होगा, लेकिन इसका जो यूज है वो अब काफी कम हो गया है, क्योंकि इसमें क्लोरीन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पर। तो हाँ, काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसको भी आप करेंगे, राइट।